Hello everyone, welcome to the online class. In this lecture, we are going to see the exercise 5th D. Okay, here it's a word problem. In this lecture, we are converting a given statement into the equation in a form of numbers. So we'll solve it and we'll get our answer. Okay, so we'll start from the very first question, that is how many 1/5 are there in 100? By seeing or by reading this question it seems hard, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, right? But when you take a small number, okay, then you will come to know what to do. Like instead of 1/5, if you will take 2, like how many 2 are there in 100? How many 2 are there in 100? For that, if you want to find the answer of that, what you need to do, 100 divide by 2. हमको अगर ये पता करना है कि 100 में कितने बार 2 आते हैं, ठीक है, 2 2 2 2 + 2 + 2 हम कितनी बार करेंगे तो हमको 100 मिलेगा, दैट इज अ 50 टाइम. हाउ वी कम टू नो इट? 100 divided by 2. So similarly we have to follow the same procedure over here. How many 1/5 are there in 100? It means 100 divided by 1/5, 1/5, right? So once you got it, now that entire sum become easy for you because you know very well how to divide with the fraction. This sign of division we are converting in a sign of multiplication. The reciprocal of this number 5/1, it gives you 100 into 5, 500. So 500 is the answer. It means कि 1/5 100 में 500 times आता है, ठीक है. Okay, move to the next question, that is question number 3. Let the 6/7 of a number is 36. 6/7 of a number, किसी एक नंबर का अगर हम 6/7 मतलब 6/7 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 36. तो हमको वो नंबर ढूंढना है. तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दैट नंबर इज़ x. x सपोज कि वो नंबर है कि जिसको हम 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर 36 मिलेगा. वही चीज़ मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्म में लिखी हुई है. 6/7 से वो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू गेट 36 एज अ आंसर. बट आई डोंट नो व्हाट इज़ x. x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है, वो नंबर मुझे ढूंढना है. सो नाउ आई एम यूजिंग transposing method. What is the transposing method? So if I want to find x, the other thing which is on the same side of x, I have to transfer on the other side. x के साथ जो भी कुछ पड़ा है वो हमको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना है by using transposing method. Okay, what is that transposing method is, if my term is positive, it means plus, then it become negative if I transfer on the other side. Minus become plus, that मल्टीप्लिकेशन रिलेशन होगा तो सामने जाएगा तो वो डिवीज़न के रिलेशन में आ जाएगा, और अगर डिवीज़न के रिलेशन में होगा तो सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है. ये दोनों एग्जैक्टली रिवर्स हैं, सेम ये दोनों, ठीक है. ओके, नाउ सी दिस 6 I want to transfer on this side. 6 right now here it is in a multiplication relation. न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर होता है ना, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन. तो 6 सामने की साइड जाएगा तो 36/6 वो डिवीज़न में हो जाएगा ना. मल्टीप्लिकेशन बिकम डिवीज़न, सामने वो डिवीज़न में है, ठीक है. दिस 7 इट इज़ ऑलरेडी इन डिवीज़न, सो डिवीज़न बिकम मल्टीप्लिकेशन. इफ माई 7 change its side, then it goes in a multiplication relation. 7 multiplication है. So now I need to solve for this. 36 into 7 divided by 6. 6 6 are 36. 6 into 7, answer become 42. It means that 42, it is my number. If I'll multiply by 6
if I multiplying that 42 by 6 upon 7, I'm going to get my answer as a 36. Okay. Okay, now we are going to see question number 6. Rayan and two of his friend, Rayan और उसके दो friend ate 1/4 each of an 8 slice pizza. एक 8 slice का पिज़्ज़ा था, उसमें वो रयान और उसके दो फ्रेंड मतलब टोटल 3 लोग थे वो, और हर एक ने कितना खाया? 1/4 ऑफ दैट पिज़्ज़ा, राइट. एंड फाइंड द रिमेनिंग स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा. हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना पिज़्ज़ा, कितनी स्लाइस अभी बची है. रयान और उसके दो फ्रेंड एक 8 स्लाइस वाला पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हर एक ने 1/4 ऑफ दैट पिज़्ज़ा दे हैव ईटन. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज how many slice of that pizza is remaining. So let's start. The total slice of the pizza is 8. Now fraction of a slice मतलब कि रयान ने कितना खाया है? 1/4 of total pizza. Total how many slice? 8. So I have multiplied by 8. Okay, 1/4 of 8. It means here what I need to do is 1/4 of को क्या करना है? Replace it with the sign of multiplication. 8 4 2s आंसर इज 2. सो आई हैव रिटन 2 स्लाइस. इट मीन्स हमको जो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया था कि रयान ने इतना खाया. वी हैव कन्वर्टेड इन अ स्लाइस. ओके, दैट फ्रैक्शन वी हैव कन्वर्टेड इन अ स्लाइस. सो रयान ईट 2 slices, राइट. रयान हैज़ एट 2 slices एंड उसके दो फ्रेंड भी थे, तो उन दोनों ने भी 2 स्लाइस खाई है. ठीक है, तो टोटल ऑल टुगेदर 3 पर्सन्स आर देयर, रयान एंड 2 हिज फ्रेंड. सो नाउ 2 into 3 इट मीन्स हर एक ने 2 स्लाइस खाई. टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 3, तो 3 into 2 becomes 6 slices. 6 slices has been eaten already, right? So how many slices are remaining? रिमेनिंग कैसे पता लगता है? टोटल माइनस ईटन. 8 टोटल स्लाइस, ईटन 6. 8 minus 6 आंसर बिकम 2. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज 7th one. द डिस्टेंस बिटवीन 2 बस स्टॉप इज 75 किलोमीटर. अ बस कवर 25 किलोमीटर in 1 hour. What fraction of distance has been covered and what fraction has to be covered? Okay, यहाँ पे जैसे कि ये A और B 2 बस स्टॉप है. ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 75 किलोमीटर. नाउ बस इज ट्रैवल्ड इन अ 1 hour. सपोज कि बस ने यहाँ से ट्रैवल करना, A to B जा रही है. ठीक है, बस A से स्टार्ट किया बस ने ट्रैवल करना. 1 घंटे के बाद मेरी बस लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे पहुँची है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. ओके, तो मुझे दिया क्या हुआ है? अ बस कवर्स 25 किलोमीटर इन अ 1 hour. तो यहाँ तक का डिस्टेंस भी मुझे दे दिया है, दैट इज़ नथिंग बट योर 25 किलोमीटर, राइट. मुझे मेरी बस 1 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँची है, दैट इज़ द डिस्टेंस इन डिस्टेंस इज गिवन, दैट इज़ 25 किलोमीटर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्विंग द सम. टोटल डिस्टेंस इज 75 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस दैट इज 25 किलोमीटर. ओके, तो अज्यूम द फ्रैक्शन. विच फ्रैक्शन? वहाँ पे लिखा है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड, कि मतलब कवर कितना हुआ. ये पार्ट को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये पार्ट का फ्रैक्शन हमको ढूंढना है. ठीक है, दिस इज होल, दिस इज अ पार्ट. सो फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ होल, राइट. सो दिस फ्रैक्शन वी हैव टू फाइंड. अज्यूम द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट इज x. ओके, सो x ऑफ 75, इतना फ्रैक्शन of the total, it means the fraction of this and
total, if you are multiplying this x of 75, it gives you a 25 kilometer. It means अगर हम वो फ्रैक्शन को टोटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसका आंसर एक क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज़ 25, बट हमको वो फ्रैक्शन ढूंढना है, ठीक है. हमको वो फ्रैक्शन नहीं दिया है. दैट फ्रैक्शन वी हैव अज्यूम्ड एज अ एक्स. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स राइट नाउ. एक्स ऑफ 75 इज 25. सो x इंटू 75 ऑफ को हमने क्या किया, रिप्लेस इट विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. x into 75 is equal to 25. Now I told if you want to find x, you have to transfer the other thing to the other side. 75 I have to transfer the other side. Right now it is in a which relation? Multiplication. If it is in a multiplication relation, it goes to the other side, then it goes in a division relation. डिवीज़न मतलब डिवाइड करना है. 25 अपॉन 75. नाउ 25 वन ज़ा एंड 25 थ्री ज़ा. 1/3 फ्रैक्शन ऑफ अ डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड. इतना उसने कवर किया 1 घंटे में, ठीक है. मेरी बस यहाँ पे पहुँची थी ना 1 घंटे के बाद, तो वो डिस्टेंस किलोमीटर में कितना था 25, और फ्रैक्शन में हमको कितना मिला 1/3. टोटल कितना होता है 1. This a to b whole, it is whole. Okay, now it is a fraction. That fraction now we know it's a 1/3. Entire thing is a whole, so we are counting as a 1. Okay, so fraction of a distance has been covered कि जो हमने ढूंढा अभी, ठीक है. वो fraction plus the fraction of a distance has to be covered कि जो cover करना अभी बाकी है, ठीक है. उन दोनों फ्रैक्शन का अगर हम एडिशन करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट whole. It means 1, ठीक है. In my very first class of this chapter I had explained what is whole. whole को हम 1 के तौर पे देखते हैं, ठीक है. 1 होता है हमेशा टोटल सारे फ्रैक्शन का एडिशन जो होता है that is nothing but a 1. This 1/3 is a fraction of a distance has been covered, that is 1/3 plus the fraction has to be covered is equal to 1. तो हमको ये ढूंढना है फ्रैक्शन हैज़ टू बी कवर्ड. अभी कितना कवर करना बाकी है उसका हमें फ्रैक्शन ढूंढना है. द फ्रैक्शन हैज़ टू बी कवर्ड, सो दिस 1/3 आई एम शिफ्टिंग दैट साइड. हियर द नो साइन इज देयर इन फ्रंट ऑफ माई 1/3, सो इट इज़ बाय डिफॉल्ट इट इज़ प्लस पॉजिटिव. ओके, इफ नो साइन इज गिवन देन बाय डिफॉल्ट इट इज़ प्लस पॉजिटिव. So plus, if I shift it to other side, then 1 minus 1/3. Why here it is a minus? Because this plus, if changes sign, then it become minus, right? 1 minus 1/3. Now you know very well how to do the subtraction of a unlike fraction. 3 is I have to take as a LCM. Here it is 1 multiplying by 3 multiplied by 3. Now 3 minus 1 into 3, 3 minus 1. Okay, 3 minus 1/3. So answer is 2/3. Okay, so this word problem is like, you know, it takes more attention from your side. You just read it carefully, executing it carefully, and without making any silly mistake. You need to simplify it also, then only you are going to get the correct answer. It takes practice. You just do whatever the sum I had skipped in this exercise. We'll meet in the next class. Thank you.